Example, let's start with word example number 5. Now, in case of work example number 5, before I go with that, remember, solubility की value से solubility product find out करना या solubility product से solubility find out करना, ये दोनों तरह से workable होता है, ठीक है? So what we are about to do is that we are going to learn one after another. The first one is calculation of solubility product from solubility, and we'll learn how to go with the vice versa. And both type of questions are present in paper 4 and 5, right? So first of all, calculating solubility product KSP from solubility. In this case of question, we have a saturated solution of magnesium fluoride, the formula for which is MgF2. The solubility value is 1.22 into 10 raised to power minus 3 mole per decimeter cube. याद रखिएगा यहाँ पर solubility के यूनिट्स मोल पर डेसिमीटर क्यूब में, और आपको अपने साइड टेबल में KSP के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मोल पर डेसिमीटर क्यूब रेज्ड टू पावर x plus y के हिसाब से नजर आते हैं, ठीक है? So this is for the solubility product. Let's come back to our worked example number 7. The step number 1 is to write the equilibrium equation down. Remember, हम equilibrium equation properly balance करके लिखेंगे तो कि हम ions को उनके balancing numbers के हिसाब से work out कर सकते हैं. And don't forget this step. This step is very imperative because this 2 written before the fluoride ions will be considered in calculation exactly after this step in step number 2. Step number 2 क्या है? Calculation of concentration of each ion. आप देखते हैं पूरे solution की concentration 1.22 into 10 raised to power minus 3 mole per decimeter cube है, which means कि इतने moles 1 decimeter cube में dissolve हुए होंगे. So हमारे पास जो simple ions concentration है वो balance equation से लेकर आएगी. तीन इसकी concentration है, उसी से हम ions की concentration find out करते हैं. So Mg की concentration भी equal MgF2 है, ये ratio से निकला है, ये भी 1, ये भी 1. So हमारे पास ये आंसर आ गया. दोबारा रेशियो करें, इस मरतबा MgF2 की रेशियो F negative के साथ करें. This is 1:2, so F negative, this value is multiplied by 2. Now take care that number which I was talking about would be used in multiplication is actually used over here. Hence the answer of fluoride ion concentration is 2.44 into 10 raised to power minus 3 mole per decimeter cube. Remember, because one for each formula unit of MgF2 contains 2 fluoride ions. Okay? Then we're going to write the equilibrium expression. KSP is equal to the ions. This is simple as that. आपने जो इक्वेशन लिखी है उसका लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के सिर्फ राइट हैंड साइड को कंसंट्रेशन में कोट कर देना और कंसंट्रेशन को उसी पावर पे रेज करना. अब वही 2 जो हमने स्टेप नंबर 2 में मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल किया है वही 2 अब पावर में इस्तेमाल हो रहा है स्टेप नंबर 3 में. That's why these numbers are very imperative क्योंकि ये कंटिन्यूअसली स्टेप्स में यूज होते हैं. अगर आप इन्हें किसी भी एक स्टेप में मिस करते हैं, there you go, you made the mistake. Step number 3, हमने इनको उसी तरह से कोट कर दिया in terms of concentration. Remember, this large bracket represents concentration in mole per decimeter cube as we studied back in AS. And this 2 is the raised power according to the balanced chemical equation. आपने KSP लिखा, उनकी वैल्यूज जो आप स्टेप नंबर 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं वो पुट करें, आपके पास KSP का आंसर आ जाएगा. KSP के आंसर की यूनिट्स निकालने के लिए हम इसी के अंदर मोल पर डेसिमीटर क्यूब की वैल्यूज पुट कर देंगे. Mg की जगह पे उसकी वैल्यू, F की जगह पे उसकी वैल्यू, F का चूंकि स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर लिया. हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट्स का आंसर आ गया. पहले नंबर्स जो स्टेप 4 से लिखे हैं वो लिखें KSP के लिए, यूनिट्स जो स्टेप 5 से लिखे हैं वो लिखें और आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ जाएगा. This is to calculate from solubility the solubility product. In order to do the vice versa, in order to calculate solubility from solubility product, ठीक है, we have this worked example number 8. ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत आए हुए. इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ ज्यादा मिलेगा. In recent years, from starting from 2016 to 2019, आपको क्वेश्चन नंबर 8 की टाइप्स ज्यादा मिलेंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया. वर्क एग्जांपल नंबर 7. If you have a question from work example number 7, let's go with that question first before we start solving the 8. Yes, sir. Okay, let's start with 8th worked example. We are going to calculate solubility from solubility product. और हमारे पास solubility product की वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स क्वेश्चन में दी होगी, वो दी हुई है, उसके प्रॉपर यूनिट्स भी कोड किए हुए. दिस इज फॉर कॉपर टू सल्फाइड. ठीक है, केमिकल इक्वेशन लिखें. इस मर्तबा क्वेश्चन आसान है.
दोनों इक्वेशन में चीजें जो हैं वो सारा कुछ 1:1 है. सो दैट मेक्स क्वेश्चन आवर क्वेश्चन वेरी इजी. सो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लेंगे इन टर्म्स ऑफ वन आइन. हम सिर्फ एक आइन के लिए इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ले लेते हैं. ऐसी क्वेश्चंस लिखना एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इसीलिए ठीक है कि आपने दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर लेना और फिर KSP की वैल्यू उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी होती है. KSP इज इक्वल टू एक को दूसरे को इक्वेट करेंगे तो हम स्क्वायर में आ जाएंगे. स्क्वायर में आ जाएंगे तो इसे अंडर रूट ले लेंगे. अंडर रूट लेने से हमारे पास कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी. कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन आ जाए. हम जानते हैं कि कॉपर और सल्फर सल्फाइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी थी. जो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन का आंसर है वो ही हमारे पास सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का आंसर भी है. ठीक है. इस तरह हमारे पास सॉल्युबिलिटी कॉपर और सल्फाइड दोनों की आ जाती है. Actually, in the last line में copper ions is equal to sulfide ions is equal to this 2.5 into 10 raised to power minus 18 mole per decimeter cube. ये उन्होंने कोट नहीं किया था. अच्छा, इतना बड़ा आंसर 2.5 into 10 raised to power 18 से आपने कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, क्योंकि याद रखिएगा ये आंसर और ये वाला आंसर जो KSP का है हमारे पास, इन दोनों में आंसर्स में ये चीज मैच करती है. पूरे का हमारे पास 6.3 into 10 raised to power minus 36 था. जब हमने सॉल्व किया और चूंकि दोनों आइंस एक बराबर हैं तो एक -18 भी हो गया, दूसरा भी -18 हो गया. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. ठीक. तो ये चीज बहुत आसान है. और 2.5 का अगर आप स्क्वायर लें तो वो 6.3 तक जा सकता है. एक्चुअली 6.2556 बट ऑलमोस्ट द सेम आंसर. आर वी क्लियर? ये मेंटल मैथ्स की टिप बताइए अभी. और ये मैथ्स स्टूडेंट्स को इतना मैथ्स आना होना चाहिए. और अगर नहीं आता तो अभी शर्म की जरूरत है, वरना ये सैट और ये टेस्ट नहीं होंगे. One more thing, you would see that you would see कि आप के पास जो MCQ पेपर्स हैं वो समटाइम्स स्टॉप नहीं किए जाते. कुछ इंस्टीट्यूशन स्टॉप कर देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस A2 में भी MCQ पेपर्स स्टॉप नहीं करते, इवन फॉर साइंसेस लाइक मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ताकि वो सैट पेपर्स और अगले आने वाले टेस्ट में आपको हेल्प करें. अगर आप चाहें तो A2 के MCQs भी नेट पर या दूसरी जगह पे अवेलेबल होते हैं, वो जरूर ट्राई करने चाहिए. वो आपको आपके पेपर 4 और पेपर 6 को क्विकली सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. लाइक दिस क्वेश्चन, इसमें अगर आप शुरू में क्वेश्चन में आप सोच लें कि हमारे पास कॉपर सल्फाइड के फॉर्मूला में इनकी वैलेंसीज बैलेंस होती हैं तो ये 1 1 होंगे, तो हमारा आंसर प्रोबेबली 10 raised to power -18 इसका और 6.3 के अंडर रूट के हिसाब से ऑलमोस्ट वही आएगा. तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे पास क्या आंसर आ सकता है. ठीक है. ये इतना लंबा प्रोसेस स्टेप वाइज बेशक नहीं भी करेंगे तो भी वैल्यू देखते ही आइडिया हो जाएगा. बट फॉर दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अ स्ट्रांग मेंटल मैथ्स. ठीक. So these are commonly solubility product calculations. There is question number 13 present over here, which you can try for yourself. But question number 13 से ज़्यादा बेहतर है कि आप पास पेपर में अपने questions करें. ठीक है. टॉपिकल बुक में ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड. ठीक है. आई थिंक हमें इसी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू भी कर लेना चाहिए. मींस उसको डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. Let's go through a few questions. अगर आप नोट करना चाहें बेशक नोट कर सकते हैं. अक्टूबर नवंबर 2017, अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर 4-2, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. ये मेरे पास मेरी बुक का पेज नंबर 77 है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी. जी सर कर लिया. ठीक है. इसी तरह से कंटिन्यूइंग. सर एक बार दोबारा रिपीट कीजिए कौन सा क्वेश्चन. जी श्योर बेटा. अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर 4-2, question number 2 part C. The page number on my book is 77 और ये यूनिट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है मेरी बुक में. हो सकता है आपका पेज नंबर डिफरेंट हो लेकिन यूनिट और क्वेश्चन सेम होगा. यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक. इसी तरह से फिर हम कंटिन्यू करते हैं.
अगले क्वेश्चंस के लिए जस्ट अ सेकंड. Then comes May June 2015, paper 4-2, question number 4, part B, beta. May June 2015, question number paper 4-2, question number 4, part B. ये मेरी बुक का पेज नंबर 87 है और ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 14 है. क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट बी करने की बात हो रही है और कोई नहीं. इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 88 पर यूनिट नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 15 पूरा किया जा सकता है. दिस इज फ्रॉम मई जून 2015, पेपर 4-1, क्वेश्चन नंबर 4. मई जून 2015, पेपर 4-1, क्वेश्चन नंबर 4. इसी तरह से अक्टूबर नवंबर 2014, paper 4-2, question number 3. October November 2014, paper 4-2, question number 3. मेरी बुक पे ये पेज नंबर 91 है और यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 17 बनता है. 17. ठीक. इसी तरह से अक्टूबर नवंबर 2012, पेपर 4-1, क्वेश्चन 2, पार्ट सी. रिपीट कर देता हूं. अक्टूबर नवंबर 2012, पेपर 4-1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सी. मेरी बुक का ये पेज नंबर 19 है और यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 24 है. इसी तरह से मई जून ये लास्ट करते हैं. इसके बाद आप खुद और कुछ देखना चाहे तो ठीक, वरना ये एक दिन के लिए बहुत है. मई जून 2010, पेपर 4-2, क्वेश्चन नंबर 2. मई जून 2010, पेपर 4-2, क्वेश्चन नंबर 2. मेरी बुक का ये पेज नंबर 103 है और ये यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 29 है. यूनिट 3 का क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है. इसी तरह से ये मेरा ख्याल है कि हाँ, ये बल्कि लास्ट था. ये पूरे जितने क्वेश्चंस थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के, वो हमने सब के सब मार्क कर लिए. ये 5 क्वेश्चंस बनते हैं इन टोटल. ठीक है. दिस वुड बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू. आर वी क्लियर? सर आखिरी वाले का क्वेश्चन नंबर क्या था? मेरा ख्याल है 29 था मेरे पास. Let me check that again. Yes, yes, that was 29. Unit number 3, question number 29 from the book. अगर पेपर का क्वेश्चन पूछें तो पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 था. बुक के अंदर से क्वेश्चन नंबर 3 है, 17 है, क्वेश्चन 4 है, 24 है और 29 है. करेक्ट. और सिर्फ केएसपी वाला पार्ट करेंगे. ठीक है ना. जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो ना मैंने सिर्फ बी पार्ट करवाया था. राइट. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपने सिर्फ केएसपी वाला पार्ट करना है और बाकी पार्ट छोड़ देना है. ठीक है. सिर्फ उतना हिस्सा करें जितना हिस्सा इस पोर्शन के साथ लिंक्ड है. बाकी जो पोर्शन होगा वो जिसके साथ हम स्टडी करेंगे उसी के साथ सॉल्व कर लेंगे. क्लियर हो गया सबको? कोई क्वेश्चन नहीं है? Yes, sir. All right, good. So continuing, predicting precipitation.
Now it's easy that you can predict precipitation from here. Solubility product की value से हम ये predict करना कि solution कितनी हद तक insoluble होगा और sudden formation of solid हो जाएगी precipitation reaction के हिसाब से या नहीं होगी. This is very easy to predict. So let's get started with that. Solubility product can be used to predict whether precipitation will occur when two solutions are mixed. ठीक है. For example, will we get a precipitate when we mix a solution of barium chloride BaCl2 with a very dilute solution of sodium carbonate? तो क्या हमारे पास उसकी precipitation बनेगी? ठीक है. First of all, that forms sodium chloride and barium carbonate. Barium carbonate is supposed to make a precipitate because that is insoluble. ठीक है. तो हम उसके हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं. Barium chloride, sodium carbonate तो soluble salts हैं. Barium carbonate relatively insoluble है. उसके precipitations के हिसाब से हमारी बात हो रही है. तो बेरियम कार्बोनेट के अगर हम हिसाब से डिस्कस करें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है वो कितना डिस्कस किया जाता है. If barium and carbonate are both greater than 5.5 into 10 raised to power minus 10, a precipitate will form. और अगर इनका ये जो आपस की मल्टीप्लिकेशन है ये लेस देन होगा तो precipitate नहीं होगा. यानी KSP और जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसकी कंपैरिजन से हम precipitation निकाल सकते हैं. That's the way. KSP की वैल्यू उसने बता दी है. अब ये जो आयन से कॉन्सेंट्रेशन हमें बताई जाएगी हम उसे KSP से कंपेयर करेंगे. अगर आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर होगी KSP से प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाएगी. अगर आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन होगी प्रेसिपिटेशन KSP वैल्यू से तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी. ऑफ कोर्स इसका मतलब लेस होने का मतलब है कि वो थोड़े से और सॉल्युबल हो गए. अगर वो थोड़े से और सॉल्युबल हो जाएंगे तो सॉलिड फॉर्मेशन होना, सडन सॉलिड फॉर्मेशन, precipitation reaction or settling of that solid at the bottom of the beaker is not going to happen. ठीक है. Let's go for a word example number 9 to understand that. Will a precipitate form अगर हम mix करें equal volumes जिनका हमारे पास concentration ये है सोडियम कार्बोनेट के और बेरियम क्लोराइड के. जैसी एग्जांपल उसने ऊपर डिस्कस की है वही यहाँ पर डिस्कस की हुई है. याद रखिएगा कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए यानी किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना जरूरी है. नंबर 1 हमारे पास आयन सी कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी है. नंबर 2 हमारे पास ये चीज होना बहुत जरूरी है कि हमारे पास KSP की वैल्यू जिससे हमने उसे रिलेट करना है. In order to check whether our value for ion multiplication is greater than the KSP value or smaller than it, हमें वो भी चाहिए. तो चूंकि उसने KSP ऊपर BaCl3 की बताई हुई है इसलिए डिस्कस की है. BaCl3 के अलावा कोई और कंपाउंड आता है वो KSP वैल्यू कोट करेंगे ये क्वेश्चन में as a part of the question. So don't worry about that. अब हमारे पास उसने बेरियम की भी कॉन्सेंट्रेशन कोट की हुई है और उसी तरह से उसने सोडियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन भी कोट की हुई है. ठीक. तो सोडियम कार्बोनेट के हिसाब से हमारे पास कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन आती है दिस और बेरियम क्लोराइड के हिसाब से उसकी कॉन्सेंट्रेशन आती है ये वाली. तो आपके ख्याल में जो ऊपर वैल्यूज लिखी हुई हैं और जो नीचे उसने बुलेट पॉइंट्स में बताई हैं उनके दरमियान डिफरेंस क्यों? मतलब 5 into 10 raised to power 5 की बजाय बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 2.5 into 10 raised to power -5 आती है. ठीक है. और इसी तरह 1 multiplied by 10 raised to power -4 की बजाय हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 5 into 10 raised to power -5 आती है. Why these concentrations change? Question for all the students. If anyone can answer it, that's good. इसलिए कि बेरियम 2 प्लस है और कार्बोनेट मतलब 2 माइनस. नहीं मेरा नहीं ख्याल कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आपकी आवाज समझने में. मेरा ख्याल है आपने सिर्फ प्लस माइनस की बात की है. मेरा ख्याल है ये सिर्फ प्लस माइनस की हद तक नहीं है. अच्छा. और रोमा आप क्वेश्चन रिपीट करने को कह रहे हैं तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन Na2CO3 की यहाँ से दी है लेकिन कार्बन आयन की जब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लिखी है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बहुत डिफरेंट है. इसी तरह बेरियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन उसने ये बताई है लेकिन जब सिर्फ बेरियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लिखी है तो इसमें और इसमें फर्क है. सर वीक बेस इस्तेमाल किया दोनों का फॉर्म करने के लिए, सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, वीक बेस इसलिए कंसंट्रेशन सोडियम कम है. कार्बोनेट को आप वीक बेस कहने की वजह से ये बात कर रहे हैं? नहीं सर वो कंसंट्रेशन कार्बोनेट के कम इसलिए क्योंकि
वीक बेस इस्तेमाल किया ना तो वो पार्शली आयोनाइज होगा, मतलब सारे आयनाइज नहीं होंगे। इसलिए से कंसंट्रेशन कार्बोनेट की कम है। वो तो जब हम प्रेसिपिटेशन के लिए बात कर ही रहे हैं किसी की, तो हम जानते हैं कि सारे आयनाइज चांसेस हैं कि नहीं होंगे। सर हम आयंस की बात कर रहे हैं, वो जो है हम ऊपर वो खाली आयंस आयन की ही बात है। कर रहे हैं, बिल्कुल। ऊपर आपने वर्क एग्जांपल नंबर 7 या 8 में गौर नहीं किया है कि हमारे पास जो आयंस होते हैं, जब उनकी इक्वेशंस बनाई जाती हैं तो उनकी कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये देखिए, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना, किसी एक सॉल्ट की, लेकिन जब आयंस को अलग-अलग निकाला तो उनको उस बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से दोबारा सेट किया हमने, ठीक है। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इसकी और उसकी रेशियो ली है। अगर अल्वान रेशियो के हिसाब से बात कर रहे हैं तो अल्वान का आंसर बिल्कुल ठीक है। हम रेशियो के हिसाब से डिस्कस करेंगे Na2CO3 और उसमें से कार्बोनेट की रेशियो में उसी हिसाब से हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उसी तरह से BaCl2 और उसकी रेशियो में भी हम उसी हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमें ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस के हिसाब से जो उसकी सॉल्यूशन के इक्वल वॉल्यूम्स हम मिक्सअप कर रहे हैं वो भी करने पड़ेंगे। याद रखिए, सॉल्यूशन मिक्सअप भी हो रहे हैं, ये मत भूलिएगा। और इनमें से दोनों सॉल्यूशंस जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं सिस्टम में, इसलिए हम ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैथमेटिकली स्पीकिंग ये बात समझ में आती है, या थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाए? कौन सा मैथमेटिकली एलैबोरेट किया जाए? आई थिंक अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद BaCl2। अगर हम BaCl2 के हिसाब से डिस्कस करते हैं तो हमारे पास BaCl2 के लिए Ba1:1 होगा, लेकिन Cl2:1 होगा, ठीक है। और हमारे पास जब ये कॉन्सेंट्रेशंस इस तरह से आएंगी तो हमारे पास सिर्फ Ba की कॉन्सेंट्रेशन जो बनेगी, ठीक है, वो हाफ बनेगी BaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन से। हेंस 5 × 10⁻⁻5 की बजाय 2.5 × 10⁻⁻5। इसी तरह से अगर हम सोडियम कार्बोनेट को देखते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की तरतीब में हमारे पास सोडियम आयंस जो होंगे वो ट्वाइस द रेशियो ऑफ सोडियम कार्बोनेट होंगे, और इस तरह से कार्बोनेट आयंस सेम रेशियो में आएंगे। लेकिन चूंकि हमने दोनों आयंस कंसीडर करने हैं सिस्टम के अंदर और ओवरऑल कंसीडर करने हैं, तो हमारे पास 1 × 10⁻⁻4 जो होगा वो 5 × 10⁻⁻5 की तरतीब से आएगा।